Wish you a very good morning. A warm welcome to next class. And today we are going to start a new topic. We are going to begin a new topic. And this topic is important for the point of examinations, for the point of entrance examinations, for the point of competitive examinations, and for the point of conversation. Now, next topic is conditional sentences. What do you mean by a conditional sentence? Have you heard about simple, compound, and complex sentences? Of course. Now, let us take examples of complex sentences. A complex sentence has two clauses. It has two clauses. One is a main clause and the another one is subordinate clause. If a sentence has two clauses as a main clause and a subordinate clause joined with a conjunction. Now, if the subordinate clause starts with if or a condition, the subordinate clause expresses a condition and the main clause expresses the result of that condition. What happens in these conditional sentences? One clause lays down the condition for the action expressed in the second clause. एक क्लोज में हमेशा एक शर्त दी होती है, एक कंडीशन दी होती है. किस लिए दी होती है? तक दूसरे क्लोज में दिए हुए एक्शन के लिए. जब आपके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स से आप गो थ्रू होंगे तो निश्चित रूप से आपको कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. वन क्लोज लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड क्लोज, मीन्स एक्सप्रेस्ड इन द मेन क्लोज. मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा यहां हम यह भी डिस्कस कर लें. मेन क्लोज नीड्स नो अदर क्लोज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग. इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग, बट सबऑर्डिनेट क्लोज हैज नॉट इट्स कंप्लीट मीनिंग. इट हैज टू or it depends upon the other clause to express its meaning. Now, subordinate clause, when subordinate clause begins with if or any other conditional word, then it is known as a conditional sentence. Conditional sentences are of four types. 1, 2, 3, 4. First is zero conditional. Second is first conditional, third is second conditional, and fourth is third conditional sentences. ये चारों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज तक नहीं गया जिसमें पूछे ना गए हों. फर्स्ट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, एंड थर्ड इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, एंड फोर्थ इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सरसाइज. आइए आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए जीरो कंडीशनल सेंटेंस एंड हाउ कैन फिल इन द वर्ब इन ए जीरो कंडीशनल सेंटेंस करेक्टली. ए जीरो कंडीशनल सेंटेंस always expresses a general truth, a universal truth, or a scientific fact. Or we can say that to express a general truth or universal truth and a scientific fact, we use zero conditional sentence. For example, what is its structure? Try to pay attention to the structure of zero conditional sentence. If this sentence, this complex or conditional sentence begins with subordinate clause, means begins with a conditional sentence, begins with if and plus subject, and then simple present tense is used before this comma, means in the subordinate clause.
then use the same simple present tense after this comma means in the main clause. इस प्रकार के जीरो कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है तो मेन क्लोज में भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। कई बार यहां ब्लैंक दिया होता है, यहां पर फिल इन किया हुआ होता है, या यहां ब्लैंक, यहां फिल्ड इन हो और यहां ब्लैंक दिया हुआ हो, तो आपको दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। एक ऐसी वर्ब का यूज करना है जो सब्जेक्ट से एग्री करे यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। मींस आइदर V1 का यूज होगा या फिर V1 के साथ S और ES लगाकर आप उसका यूज कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस हैव ए ग्लांस एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट इज इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो यहां कोमा से जो पहले है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इट मेल्ट्स ये मेन क्लोज है। व्हाट मेल्ट्स मींस आइस मेल्ट्स। इट इज यूज्ड फॉर आइस हियर। नाउ इफ वी हीट, वी इज ए प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, and we use V1 after this plural pronoun. If we heat ice, this is a scientific fact. यदि हम आइस को हीट करते हैं, it melts, तो ये पिघल जाती है। This is a scientific fact. It is always expressed in simple present tense in both the clauses. Either it is a subordinate clause or a main clause. यदि ये सेंटेंस if से शुरू हो तो हम इस पहले क्लोज के खत्म होने के बाद कोमा अवश्य लगाएंगे, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज अर्थात इफ से शुरू होने वाले क्लोज से ही शुरू हो। इस सबऑर्डिनेट क्लोज को इस मेन क्लोज के बाद में भी यूज किया जा सकता है। यदि कंडीशनल क्लॉज, यदि सबऑर्डिनेट क्लोज लेटर आया हुआ हो, बाद में यूज किया गया हो, तो इफ बीच में आ जाएगा और हमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एग्जाम्पल को देखिए, आइस मेल्ट्स, यहां इट को के स्थान पर हमने सब्जेक्ट आइस यूज किया। आइस मेल्ट्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहां पर मैंने किसी कोमा का यूज नहीं किया है क्योंकि आइस मेल्ट्स मेन क्लोज है और इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलता। अगर कोई आपको केवल इतना कहे आकर, अभी कोई एंटर करे और आकर कहे इफ टेम्परेचर राइजेस, व्हाट डज इट मीन, क्या समझ आया हमें? कुछ नहीं। हम पूछेंगे व्हाट हैपेंस। अगर कोई आकर के केवल इतना कहे आइस मेल्ट्स, हम समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो जिसका मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ जाए वो क्लोज मेन क्लोज होता है। इसे हम प्रिंसिपल क्लोज के नाम से भी जानते हैं, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। और जहां तक ये सेकंड क्लोज है जिसमें इफ आया हुआ है, जिसमें कंडीशन है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जानते हैं, उसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इस प्रकार से यदि डिपेंडेंट क्लोज पहले आता है तो हम हमेशा कोमा लगाएंगे। इसको इस प्रकार से सीख लीजिए, डिपेंडेंट क्लोज कोमा इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आता है तो हम इसको इफ से ज्वाइन कर देंगे और यहां पर डिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा और कोई कोमा यहां नहीं लगेगा। अब जीरो कंडीशनल का मतलब यह है कि दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। देखिए, इफ द सन राइजेस, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, दिस इज ए साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज ए जनरल ट्रूथ। If the sun rises, fog disappears. सर्दियों में आपने देखा होगा जब तक सन राइज नहीं होता तब तक फॉग डिसअपियर नहीं होती। If the sun rises, fog disappears. इस मेन क्लोज को हम पहले भी लिख सकते हैं, fog disappears if the sun rises. We have understood the concept of zero conditional sentence. Now let us solve an exercise based on zero conditional sentence. अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एग्जाम में जीरो कंडीशनल सेंटेंस आखिर पूछा कैसे जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा
जिसमें दो क्लोज होंगे, एक कंप्लेक्स सेंटेंस होगा। आपको देखना है यदि उसमें जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्योंकि जीरो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज होता है एज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। आइए हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करें। पहला सेंटेंस है इफ इट डैश द ग्रास डैश वेट। यहां पर पहली वर्ब दी हुई है रेन, दूसरी दी हुई है गेट। अब चूंकि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक जनरल ट्रूथ है, इफ इट डैश द ग्रास डैश वेट, इफ इट रेन्स, क्योंकि इट यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस लगा देंगे वर्ब के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। यदि वर्षा होती है तो घास गीली हो जाती है। यह एक जनरल ट्रूथ है, वर्षा होगी तो घास गीली होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे दोनों ब्लैंक्स में। इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। इस मेन क्लोज को इस सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले भी लिखा जा सकता है। द ग्रास गेट्स वेट इफ इट रेन्स। What rains? If rain rains. Next is water dash solid if you dash it. First verb is become, second is freeze. Water becomes solid because water is a singular subject. Water becomes solid if you freeze it. V1, if you freeze it. And the next is plants die. Plants die if they dash enough water, not get. यहां जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल क्लोज है, उसमें V1 पहले से ही दी हुई है। आपको मेन क्लोज की वर्ब भरनी है। आप इसको देखिए कि प्लांट्स डाई इफ दे नॉट गेट इनफ वाटर, जनरल ट्रूथ है। पौधे में अगर हम पानी नहीं डालते तो वो मर जाते हैं। तो प्लांट्स डाई इफ दे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। यहां क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है, दे इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। नेक्स्ट इज इफ यू डैश टू कम, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। समवन हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, इफ यू डैश टू कम कॉल मी बिफोर 4 PM. Call me before 4 PM. This is an imperative sentence. An instruction has been given to someone. Call me before 4 PM if you want to come, if you want to see me, if you want to meet me. For an instruction, we use simple present tense in zero conditional sentences. इस प्रकार से सभी entrance examinations में, सभी competitive examinations में और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब्स पूछी जाती हैं। अभी सक्षम प्लस का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी इस तरीके के सेंटेंस पूछे गए थे एट मिडिल क्लास लेवल। 7th और 8th क्लास के का सक्षम प्लस के एग्जामिनेशन में ये वाले सेंटेंसेस दिए हुए थे। और मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देखे हैं जिनमें ये सेंटेंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो यदि आप कंडीशनल सेंटेंसेस पर मास्टरी हासिल कर लेंगे, कभी भी इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा।